Good morning, students. Today we are going to attend the economics class. Now we are going to start the chapter number 10th of part A, that is measure of central tendency, median and mode. In the last video we have covered the chapter number 9. So we are going to start our new chapter, that is chapter number 10, that is measure of central tendency, median and mode. Topic covered in this video, we are going to cover the three series of median, that is integral series, discrete series and frequency distribution. Introduction of this chapter. First we are going to know about the median. What do you mean by median? It is a centrally located value of a series such that half of the value of the series are above it and other half is below it. I am going to repeat it again. It is a centrally मतलब center located value of the series, center value होती है. Such half of the value, ऐसा हाफ होता है जिसमें एंड दैट हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ द सीरीज आर अबव इट एंड अदर हाफ इज बिलो इट. In median, there are three series, that is integral series, discrete series and frequency distribution or continuous series. Now we are going to start from the integral series. In the integral series, the following step you are going to follow. The first step is x is given to you. You have to arrange that x either in ascending order or a descending order. आफ्टर अरेंजिंग अकाउंट द टोटल वैल्यू, आपको अरेंज करने के बाद उसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी वैल्यू दी हुई है आपके एक्स की, आपने उसको क्या कर लेना, काउंट कर लेना है. अरेंज करने के बाद और काउंट करने के बाद यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. द फॉर्मूला इज m means median size of n plus 1 upon tooth item. N means number of the items. When the answer comes, then see in the x which item. For example, if the answer is fifth item and in the x fifth item is 20, the answer is 20. Now I am going to explain with the help of one sum. X is given to you in the individual series. X is given to you. Now I have arranged this x in a ascending order. Now I have count the items which are given in the x, that is 11. Now I am going to put the formula m is equal to size of n plus 1 upon 2 item, that is 11 plus 1 upon 2, that is 12 upon 2. The answer is 6th item. Now I am going to see in x which is the 6th item, that is 21. That answer is 21. Some students leave over here size of 6 item. They don't see in the x what is the answer. Students, please take attention. You have to see in the x which is the 6th item. That will be the answer. Now आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन. आपको x दी होगी, आपने उस x को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर लेना है. मैंने यहाँ पे असेंडिंग में अरेंज किया है. असेंडिंग में अरेंज करने के बाद आइटम्स को काउंट कर लेना है, वैल्यूज़ को काउंट कर लेना है, कितनी वैल्यूज़ दी हुई है. उसके बाद आपने फॉर्मूला लगा देना है m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 आइटम. उसके बाद आपने क्या निकालना है, आंसर आ गया आपका 6th आइटम. आपने 6th आइटम को x में देखना है कहाँ पे लाई कर रहा है. एक्स आइटम 6th आइटम कहाँ पे लाई कर रही है आपकी, कहाँ पे 6th आइटम कौन सी है आपकी, 21. आपने देखना क्या है कि 6th आइटम कौन सी है एक्स में, तो 6th आइटम कौन सी है, 21. तो आंसर क्या है आपका 21. Now, in the second sum of this integral series, x is given to you. I have arranged this x in ascending order. Now, I have counted the number items of x, that is 8. I have first of all I have written the formula size of n plus 1 upon 2 item. So, I have counted the items, that is 8. 8 plus 1 upon 2 item. Now, answer is 4.5 item. Now, students, may I pay attention over here. In the integral series, if answer come in the point, now the formula will be the change. That will, what you have to see that आपने पॉइंट से पहले देखना है. आपके पॉइंट से पहले क्या है आपके 4th, तो आपने पहले क्या लिख देना, साइज ऑफ 4th आइटम. अब 4th के बाद आपने इंक्रीजिंग में देखना. 4 के बाद क्या आता है 5,
यहाँ पे ऑलरेडी आपको 5 दिया हुआ है, तो आपने क्या किया, साइज ऑफ फोर्थ आइटम प्लस फिफ्थ आइटम अपॉन 2। फॉर एग्जाम्पल इफ योर आंसर कम 5.8, आपका आंसर कितना है 5.8, आपने क्या देखना है, फिफ्थ आइटम ले लिया सीधा आपने, फिफ्थ के 5 के बाद क्या आता है 6, तो क्या होगा फिफ्थ आइटम प्लस 6 आइटम अपॉन 2। सेम इफ आपका आंसर आ रहा है 4.9, तो आपने क्या करना है, फोर्थ आइटम, फोर्थ को वैसे लिख लिया, 4 के बाद क्या आता है 5, फोर्थ आइटम प्लस फिफ्थ आइटम अपॉन 2। आपने 9 को नहीं लेना, आपने पॉइंट से पहले देखना है, आपके पॉइंट से पहले क्या है, आपके पॉइंट से पहले 4 है, तो 4 के बाद क्या आता है 5, तो अपने फोर्थ आइटम प्लस फिफ्थ आइटम अपॉन 2। नाउ कम टू द सम, आवर आंसर कम 4.5। Now I've written over here the formula, size of fourth item plus fifth item upon 2। आपने x में देखना फोर्थ आइटम कौन सी है, फोर्थ आइटम हमारी कौन सी है 71, एंड फिफ्थ आइटम आपकी कौन सी है 72। So I have written over here 71 plus 72, 71 plus 72 upon 2, answer is 71.5। Now we are going to start discrete series. In the discrete series, x and f is given to you. You are going to calculate the CF. आपको x दी होगी, f दी होगी, आपने क्या निकालना है CF। CF कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म क्या रहेगी आपकी सेम, और उसके बाद क्या करना है आपने 2 + 3 5, 5 + 8 दैट इज़ 13, 13 + 10 23, 23 + 12 दैट इज 35, 35 + 16 दैट इज 51। इस तरह आपने सारी क्या निकाल लेनी है, CF निकाल लेनी है। नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला, फॉर्मूला विल बी द सेम, दैट इज मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n + 1 अपॉन 2। देयर इज ओनली वन डिफरेंस, वहाँ पे हम आइटम्स को काउंट करते थे, वो हमारा n होता था। इन दिस सम n इज द CF लास्ट, आपका CF का जो लास्ट है वो आपका क्या होगा, n होगा। n क्या है अपना, CF का लास्ट क्या है आपका 75, सो आंसर विल बी द 75 + 1 अपॉन 2 दैट इज 38th आइटम। नाउ आंसर इज 38 आइटम। अब आपने 38 आइटम किस में देखना है, 38 आइटम आपने CF में देखना है। 38 आइटम देख कहाँ पे लाई कर रहा है आपका, 35 में तो लाई नहीं कर रहा, कहाँ पे लाई कर रहा है 51, आपने हमेशा इंक्रीजिंग साइड पे देखना है। किस में लाई करा 38 51 में, आपने 51 के सामने बिल्कुल सामने देखना है x में 51 में कहाँ स्टैंड करता है, x पे कौन सी नंबर स्टैंड करता है, दैट इज 7, तो आंसर विल बी द 7। आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन, आपने CF निकालने के बाद एंड हमेशा CF का क्या होगा, लास्ट होगा, तो CF क्या आपका 75, सो 75 + 1 अपॉन 2 दैट इज 38th आइटम। आपने 38 आइटम आगे आप x में देखते थे, अब आपने किस में देखना है CF में, और CF में हमेशा इंक्रीजिंग साइड पे देखना है। इंक्रीजिंग साइड मीन्स 35 और 51 कहाँ पे लाई करेगा, हमेशा 51 के बिल्कुल आपने सामने x में देखना है कि कितनी वैल्यू है, कितनी वैल्यू आपकी 7, सो मीडियन इज 7। नोट इन द डिस्क्रीट सीरीज n इज क्या होता है आपका CF का लास्ट। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू in the formula, whatever the answer come, you have to see in a CF। जो भी आंसर आएगा आपने किस में देखना है, CF। फॉर एग्जाम्पल 38 आइटम यू हैव टू सी इन द CF। आंसर कितना आया था अपना 38, तो आपने किस में देखा, आपने CF में, और CF में आपने हमेशा इंक्रीजिंग साइड पे देखना है, और इंक्रीजिंग साइड के बिल्कुल आपने सामने जाना है, जो x की वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा। आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, हमेशा n क्या लेना है आपने, n आपने क्या लेना है CF, n क्या लेना है आपने CF का लास्ट, और जो भी आंसर आएगा आपने उसमें किस में देखना है, CF में देखना है। क्यों, जो भी आंसर आएगा फॉर्मूला डालने के बाद आपने किस में देखना है, CF में देखना है। CF में जहाँ पे भी वैल्यू लाई करेगी आपने उसके बिल्कुल सामने जो x की वैल्यू होगी वही आपका क्या होगा, आंसर। This is your discrete series. Now we are going to start our next series, that is continuous series. And this x is given to you. Everybody knows now in the continuous series or in a frequency distribution, x जब भी दी होगी वो क्या दी होगी आपको क्लास इंटरवल्स में। आपने इसमें मिड वैल्यू नहीं निकालनी, आपने क्या निकालना, आपने मिड वैल्यू क्या नहीं निकालनी, आपको f दी होगी, आपको क्या दिया होगा f, आपने f से क्या निकाल लेना है, CF निकाल लेना। आपने f से क्या निकाल लेना है, आपने
CF में कैसे निकालेंगे? एवरीबडी नो फर्स्ट टर्म रिमेन द सेम, 22 + 38 दैट इज 60। आपने ऐसे CF निकालने के बाद आंसर क्या आया आपका? 161। नाउ इन द कॉन्टिन्यूस सीरीज फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। आपने इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में सेम फॉर्मूले करे, बट कॉन्टिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला सेम नहीं है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला क्या है? डिफरेंट। नाउ लुक एट हेयर स्टूडेंट, फॉर्मूला इज मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2 आइटम। क्या है फॉर्मूला? n/2। आपने +1 नहीं करना। कॉन्टिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? n/2। n आपने वही लेना जो आपने डिस्क्रीट सीरीज में लिया था। डिस्क्रीट सीरीज में n क्या लिया था आपने? CF का लास्ट। तो इसमें भी आप क्या लोगे? CF का लास्ट। CF का लास्ट कितना है? 161। कितना है आपका? 161। तो आपने 161 को 2 के साथ डिवाइड किया तो आपका आंसर क्या आएगा? 80.5। 80.5। Now in the second formula, that is median is equal to L1 plus n/2 minus CF into I upon F. सेकेंड फॉर्मूला क्या लगाना है आपने? L1 प्लस n/2 माइनस CF इंटू आई अपॉन F। ना L1 क्या है आपका? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन वैल्यू। जो भी आपकी CF की वैल्यू आएगी उसके सामने वो क्या होगी? आपकी लोअर वैल्यू। CF क्या होगा? कॉम्प्लिकेटिव फ्रिक्वेंसी। F क्या आपकी? फ्रिक्वेंसी। I क्या है? डिफरेंस। और द साइज ऑफ द मीडियन क्लास इंटरवल। आना चाहिए। Now look at here that formula is L1 plus n/2 minus CF upon F into I। अब आपने क्या देखना है? आपका आंसर कितना आया था? 80.5। CF में कहाँ पे लाई कर रहा है? 106 पे, 106 पे लाई कर रहा है। आपने इसमें CF कौन सा लेना है? उसके ऊपर वाली वैल्यू। 106 के ऊपर क्या आपका? 60। सो CF क्या होगा आपका? 60। उसके बाद उसके 60 ले लिया आपने CF। अब F क्या होगा? जो आपकी CF की वैल्यू लाई कर रही है उसके सामने वाला क्या होगा आपका? F। उसके सामने वाली जो क्लास इंटरवल है वो क्या है? लोअर क्लास इंटरवल कौन सी है? 20। तो L1 क्या होगा आपका? 20। और कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें? डिफरेंस क्या है आपका? 10। तो I क्या होगा आपका? 10। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। L1 क्या होगा आपको यहाँ पे? 20। F क्या होगा आपका यहाँ पे? 46। और CF क्या होगा? जो वैल्यू आई है उसके ऊपर वाला आपका हमेशा क्या लेना आपने? CF दैट इज 60। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। आपका आंसर कितना आया था? 80.5। 80.5 कहाँ पे लाई करा? 106। आपने जब भी CF लेना है जो वैल्यू आई है उसके ऊपर वाली लेनी है। दैट इज CF कितनी है आपकी? 60। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई आपकी? 60। और F आपने वही लेना है जिसमें आपकी वैल्यू आई थी। 106 के सामने क्या है आपका? F क्या है? 46। उसके सामने वाला क्या है आपका? L1 क्या है आपका? 20। डिफरेंस क्या है इनमें? 10। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपने CF हमेशा क्या लेना? ऊपर वाली टर्म लेनी है। जिसमें आपकी वैल्यू लाई करेगी उसकी ऊपर वाली टर्म आपकी क्या होगी? आपकी क्या आएगी? CF। नाउ आई हैव पुट द वैल्यू दैट इज 20। L1 कितना था अपना? 20 प्लस 80.5 अपना n/2 था माइनस CF क्या था हमारा? 60। F क्या था हमारा? 46। कॉमन डिफरेंस कितना था हमारा? 10। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। L1 क्या था आपका? 20। n/2 कितना था आपका? 80.5। CF क्या था आपका? 60। F क्या था आपका? 46। I क्या था आपका? 10। Now after solving this value, the answer is 24.46. That is your answer. In the continuous series, there are two methods, n/2 and second is L1 plus n/2 minus CF into I upon F. So in the end, we conclude that we have done here three series, that is individual series, discrete series, continuous series. In the individual series, M formula is M is equal to size of n plus 1 upon 2th item. M is equal to size of n plus 1 upon 2th item. N is number of the values, कितनी आपकी items given है वही आपका n है. और next is discrete series. M is equal to size of n plus 1 upon 2th item. यहाँ पे n क्या है? CF का लास्ट. यहाँ पे n क्या है आपका? CF का लास्ट.
Next we have done the continuous series. M is equal to size of n upon tooth item. n क्या आपका यहाँ पे CF का लास्ट, बट इसके बाद एक और फॉर्मूला लगेगा. कौन सा लगेगा? L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई. इन द कॉन्टिन्यूस सीरीज कितने फॉर्मूले हैं, कितने फॉर्मूले लगाने हैं आपने? 2. पहला कौन सा है? साइज ऑफ n अपॉन 2. आपने n प्लस 1 अपॉन 2 नहीं लेना, आपने क्या लेना है? n अपॉन टूथ आइटम. उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला लगाना है L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई. स्टूडेंट मैंने आपको बहुत आई हैव गिवन यू some sums of these 3 series that you have to done in your fair notebook, and I have also sent you the assignment of the mean that you also have to do in your fair notebook.